So, ma'am, the topic that I went for was how the Jattis influenced the women of Pakistani films. Ma'am, basically, my reason for going for this topic was very basic because I wanted to learn more about it, and I wanted to also write के किस तरह हम evolve किए हैं from the typical Pakistani Urdu characters जो कि एक मेल प्रोटोगनिस्ट पे डिपेंडेंट होती थे to like more brave, more independent women altogether in Urdu films, right? So, ma'am, in the current situation of social climate where feminist views are actually the most dominant topic of discussion globally, it is fair to say that women of Pakistan have already that Pakistan as a general media has a lot of catching up to do, right? Still, in Pakistani films, the portrayal of female characters is quite controversial. But comparing it to the screens today, फ्रॉम द अर्लियर स्क्रीन्स जो हमारी 1970 से लेके से लेट 19s तक 90s तक चलती रही हैं, we still have a lot of catching up to do, right? Because हमारा जो भी एक एक evolution आई है सिनेमा में, वो hasn't come from the west, it has indeed come in from within Pakistan, right? Which is very surprising because जो भी कहता है कि पाकिस्तानी सिनेमा evolve किया, वो यही कहता है कि जी वेस्ट को देख के evolve किया, which is to an extent true, but काफी इस तरह के changes हैं जो within पाकिस्तान भी आए हैं, right? जिस तरह एक एनालिसिस था ऑफ एन उर्दू फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी इज a movie जो recently आई है. I think it came out in 2016 or 17, and it was a movie जिसमें एक lead होती है, मेविश हयात उसको play करती हैं, and she's a rather dominant personality or dominant character, right? So a basic translation of the word chui mui is someone who's very touchy, who's someone who's very precautious, someone who's very delicate and sensitive. और इसी तरह की एक इमेज होती है जो औरतों की दिखाई जाती है हर मूवी में, और एक सोसाइटल आपकी परसेप्शन भी वही है एक औरत की कि शी इज वेरी डेलिकेट, शी इज वेरी डिपेंडेंट, शी इज वेरी टची, एंड शी वुडंट लाइक कि उसके लिए कोई इस तरह का मौका आया जाए जहां उसके लिए मुश्किल पैदा हो. शी वुड ऑलवेज वांट कि देयर इज अ मैन टू डू ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस, हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर हर, राइट? तो these are a lot of negative I think stereotypical. Miss left the meeting, so please रुक जाओ until she comes back, Oh, वरना वापस सारा खोलना पड़ेगा. thanks Tanya. कितनी Welcome. देर हो गई उनको गए हुए? I think 30 seconds. Oh, she's here. I don't know why I was disconnected. Please continue. मैम आपने कहाँ तक सुना था? नहीं, आपने स्टार्ट किया था उसी वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई एम सजेस्टिंग कि प्लीज आप इसको शुरू से दोबारा, आपको मैं शेयरिंग राइट्स दे रही हूँ इन केस, हाँ आपके पास है शेयरिंग राइट अभी भी, तो प्लीज उसको दोबारा शेयर करके ना, तो आपने बस स्टार्ट ही किया था तो वो मैम फौरन। एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ, मैं शेयर कर नहीं सकती, बट मैं आपको हाँ, वैसे ही बता देती हूँ. यूल हैव इट्स सबमिटेड, तो मैं आपको वैसे ही प्रेजेंट कर देती हूँ. जी जी ठीक है जी मैम, जी शुरू से ही मैं कर दूं पर. जी 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 तो बेसिकली मैम द टॉपिक दैट आई वेंट फॉर वाज how the Jattis are influenced by the chui mui women of Pakistani films, right? ये जो topic था, I went for this, and my reason for going for this topic was very basic because मैं चाहती थी कि जो एक influence आया है हमारे पाकिस्तानी cinemas पे, where like from characters who were very dependent on male characters, we went to characters जो काफी self made थे, dominant थे, individual or independent थे, right? So in the current social climate where feminist views and women empowerment are the most dominant topics of discussion globally, I think it is fair to say that Pakistan has a lot of catching up to do, right? So in Pakistani films, the portrayal of female characters is quite controversial because हम जहाँ भी देखते हैं, we see characters जो early हमारे 1970s में होते थे, जहाँ पे characters were quite dependent on male characters to put them through, और उसमें basically the very translation of the word chui mui was someone who's very touchy, someone who's very precautious, someone who's very delicate, someone who's very sensitive, right? तो इस तरह की जो नेगेटिव स्टीरियोटिपिकल हमारे ऊपर वुमेन के ऊपर सराउंडिंग्स थी,
were actually all that the Pakistani cinema was showing, right? तो इसमें मैम हमारे जो 1970s में बेसिकली सारी मूवीज होती थी, उसमें एक औरत को इस तरह दिखाया जाता था एज इफ शी इज अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, राइट, एज इफ शी नीड्स अ मैन टू कम एंड हैंडल द सिचुएशन फॉर हर। और इसी तरह की हमारी उर्दू फिल्म में अर्लियर उर्दू फिल्म्स में हमारी पोर्ट्रेयल्स होती थी। सो एन एग्जांपल ऑफ दिस इज 1968 में रिलीज हुई भी मूवी दिल मेरा धड़कन तेरी, जिसमें फीचर हुआ था एक नोटोरियस वे ऑफ शोइंग हाउ व्हेन अ वुमन टेक्स डीप ब्रेथ्स तो उस पे क्लोजअप आता था, हाउ हर चेस्ट यूज्ड टू एलिवेट और जस्ट टू कैच द अटेंशन ऑफ द मेल व्यूअर्स और समथिंग लाइक दैट। वो इस तरह के डायरेक्टर्स भी तब मेजर मेल ही होते थे, मेजॉरिटी। तब जो कोरियोग्राफर्स होते थे जो ये स्टेप्स वगैरह आपको बताते थे वो भी मेल होते थे। आप जिसके लिए स्क्रीन पे ये सब कर रहे होते थे, जो आपके साथ आपका को एक्टर होता था, ऑब्वियसली वो भी मेल ही होता था। और उस टाइम जिस तरह मैम आपने हमें बताया था कि काफी मसला होता था औरतों को सिनेमा में जाके मूवीज देखने का, राइट? तो आपकी जो मेल ऑडियंस होती थी मेजोरिटी भी वही होती थी, तो उन्हीं के लिए इस तरह के सीन्स दिखाए जाते थे जिसमें एक औरत का मेन पॉइंट ऑफ बीइंग इन मूवी होता ही यही था कि वो बस एक लव स्ट्रक औरत है एंड शी विल डू व्हाटएवर शी वांट्स, व्हाटएवर शी कैन टू अचीव अ मैन्स लव, एंड दैट्स ऑल द पर्पस शी हैड इन फिल्म, राइट? जिसके लिए आपको एक औरत को वो बेसिकली फिल्म के अंदर इंक्लूड किया जाता था, राइट? इसके अलावा मैम ये जो लॉरा मल्वे की थ्योरी थी ऑफ द मेल गेज, राइट, दिस वाज समथिंग दैट कोरिलेटेड विद आई थिंक द मूवी इटसेल्फ, जिसमें दिखाया जाता था कि the gender power asymmetry is a controlling force in cinema and constructed for the pleasure of the male viewers, right, which is deeply rooted in the patriarchal ideologies and discourses. Ma'am, this is something that was very important yet alarming in that era, जहाँ पे movies में काफी इस तरह के scenes और shots होते थे which were there to cater to the male satisfaction and the male viewing point और इस तरह की चीजें, right? और this theory was also applied considering कि लॉरा ने ये theory जो है वो 1975 में क्या कहते हैं इसको पिन डाउन किया था, बट इसका जो enforced manner of breathing है और ये सारा कुछ है we see कि ये आज तक काफी मूवीज में आपको अभी तक दिखाया जाता है। उसके अलावा मैम, apart from the physical implications of a female gestures, a brief look at the film's plot was also very important. जो ये छुई मुई कैरेक्टर्स होते थे, ये इसी तरह के कैरेक्टर्स होते थे जिनको हमेशा एक सराउंडिंग्स में एक मर्द चाहिए होता था जो just handle the situation for them. और एक एग्जाम्पल इसका ये था कि इसी मूवी की बात हो रही है मैम, ये जो थी धड़कन मेरी वाली जो एक से मैम इसका नाम क्या था, दिल मेरा धड़कन तेरी। इसमें मैम जो ये द वे रानी परसूज द अटेंशन एंड अफेक्शन ऑफ वहीद मुराद ओनली सर्व्स दैट इमेज के एक औरत की एक मेल लीड को बस वो करने के लिए ही उसको एक मूवी में इंक्लूड किया जाता था उस टाइम में, एंड दीज वर द कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ उर्दू फिल्म्स इन दोस टाइम्स। इसके अलावा मैम एक आगे चल के जो कॉन्ट्रास्ट में मेरी जो बात थी इस प्रेजेंटेशन की वो ये थी कि हाउ द एवोल्यूशन फ्रॉम छुई मूवीज टू जट्टीज केम इन उर्दू फिल्म्स ऑल टुगेदर, राइट? जट्टी नाम से ही आपको पता लगता है कि एक काउंटर पार्ट ऑफ द वर्ड जट था, एंड जट हमें पता है वी यूज देम फॉर समवन हु हैज पावर, जो एक इनकी कास्ट होती है जिसमें हम देखते हैं कि पावर होती है, ब्रेवरी होती है, स्ट्रेंथ होती है। सो दिस वाज लाइक अ फीमेल काउंटर पार्ट जट्टी, जिसमें हम एक औरत को कहते थे कि this is someone, she's someone who's brave, she's someone who has strength, she's someone who has like the audacity to stand in front of people and stuff like that. इसका मैम एग्जाम्पल था पंज दरिया, which was a movie that was also released in the same year as दिल मेरा धड़कन तेरी in 1968, जिसमें एक फीमेल लीड थी फिरदौस, and she appeared on screen riding a horse,
which was something जो एक like a typical उर्दू फिल्म में आपको नहीं दिखाया जाता था कि एक औरत बस अकेली एक सीन में आ रही है and she's a part of she's leading the scene. उसके अलावा इसमें कोई क्लोजअप्स नहीं दिखाए गए थे जिस तरह के ऑब्जेक्टिफाइंग क्लोजअप्स हमें पहले की पाकिस्तानी फिल्म्स में दिखाए जाते थे. उस तरह के इस तरह की फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरीज जो है they are closely defined as seeing or treating a person that is usually a woman as an object, right? उसके अलावा मैम आगे जाके I've also mentioned how पंजाब नहीं जाऊंगी was a movie जिसमें basically हम देखते हैं कि Mehwish Hayat is a character who basically fights for her rights, values only herself, does not stand behind a man to protect her from any damsels in distress. तो इस तरह के कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तानी फिल्म्स में आना शुरू हो गए हैं जिनको हम कंपैरिजन देखते हैं जट्टीज वर्सेस चूई मूवीज. और इस तरह के जो नोट वर्दी कंपैरिजन्स हैं वो और भी काफी ज्यादा हैं. जिस तरह एक मूवी थी शेर खान जिसमें women were seen displaying weapons. उनके हाथ में गन्स होती थी. वो काफी इस तरह के भी इस मूवी में सीन्स थे जिसमें women used to save someone from. एक सीन था मैम जिसमें वो अपने बाप को एक घर में जिसमें आग लगी हुई होती है तो जाके बचाती है उसको. इस तरह के सीन्स होते हैं जहाँ a woman is leading the scene basically, right? So ma'am, in conclusion, like I said earlier, कि पाकिस्तानी सिनेमा still has a lot to catch up on, even though हम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं काफी कुछ हद तक within पाकिस्तान से, कुछ हद तक वेस्टर्न सिनेमा से, but still I think हमारे इधर पंजाबी में अगर आप कुछ बोलो सिनेमा में या कुछ तो they find it unattractive or they find it पेंडू. but अब आके अगर आहिस्ता आहिस्ता हम evaluate कर ही रहे हैं सिचुएशन को तो I think we have a lot to learn still, because हमारी ऑडियंस अभी तक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न सिनेमा से. एंड इफ यू पुट अ क्लासिक उर्दू फिल्म इन फ्रंट ऑफ देम एंड उनको अगर चूज करने को बोलो तो they would always go for a western film, right, rather than a classical उर्दू फिल्म जिसमें शान हो या जिसमें इस तरह के हमारे टिपिकल पाकिस्तानी सिनेमा के एक्टर्स हों, right? So now I think that's all. All right, thank you. I think it was very nice. Ji, questions? Questions, comments? कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट जो भी आप लोग देना चाहें ऑन द प्रेजेंटेशंस, ऑन सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स, यूज ऑफ थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें. एनीवन, एनी कमेंट? No comments? Dania? Miss, the topic was elaborated and discussed very nicely through giving examples, so I think that's that. Right. That's very correct. Zainab, I think what it was very strong कि आपने काफी सारी फिल्म्स की, you found a good number of scenes. मोस्टली आपने जो सीन सिलेक्ट किए या मोस्टली आपने जो फिल्म सिलेक्ट की, आई थिंक आपका मेजर एम्फोसिस जो है वो एक्चुअली जट्टी के ऊपर ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आई थिंक वर द पंजाबी फिल्म्स जो कि आपने सिलेक्ट की फॉर डिस्कशन. जी, क्या तो वो उसमें बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिंपली सिर्फ यही कहूंगी कि समटाइम्स इट्स वेरी यूजफुल कि आप उसमें जो आप जो बात कर रही हैं उसमें एक छोटी सी मामूली सी एक्सप्लेनेशन कहीं पे जो है वो आई थिंक जट्टी को आपने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया, जो आप कह रही थी कि जट्टी इज वो जो टची और ये तमाम चीजें आपने एक्सप्लेनेशन दी थी. सो दैट इज फाइन, क्योंकि आपने उसकी डेलिकेसी वगैरह और प्रिकेरियस नेचर और सेंसिटिव नेचर को आइडेंटिफाई किया. आई वुड सजेस्ट कि इस वाले पार्ट में अगर आप एक आध फिल्म का नाम शामिल कर लेना, एक दो एक्सप्लेनेशंस, आई बिलीव कि आपके रिसर्च पेपर में होंगी, तो हम वी कैन अंडरस्टैंड कि आपका सारा ऑडियंस तो जो कि आपकी क्लास में से है, तो योर ऑडियंस इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द वोकैबुलरी छुई में गर्ल और जट्टी की जो है.
लेकिन इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस तो इसमें आपके लिए यूजफुल होगा कि आप छुई मुई के गर्व को थोड़ा सा जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपका उस पे डर्टी के ऊपर अच्छा खासा एम्फोसिस है, बहुत अच्छी सिलेक्शन आपने ली हुई है। मुख्तलिफ फिल्म्स में जो डर्टी के अंदर मुख्तलिफ मुसलसल जो वेराइटी और जो चेंज आ रही है वो आपने उसको मेंशन किया। आई बिलीव कि ये जो आपने 68 की दिल मेरा धड़कन तेरी मेंशन की थी, ये उर्दू फिल्म है, जी राइट? जी मैम, ये क्लासिक उर्दू हाँ, पाकिस्तानी आई फिल्म थिंक है। कि शायद वो काफी है प्रॉब्लली फॉर नाउ कि आपने छुई मुई गर्ल को एक्सप्लेन करने के लिए जी वहां से उसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो आपके जो काफी सारे कैरेक्टर्स थे जिसमें जट्टी की जो आपने मुसलसल वैरायटी और चेंज डिस्कस की, दैट वाज वेरी नाइस। तो अब आपको मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि आपने जो आपकी प्रेजेंटेशन में आपने किसी थेरिस्ट का नाम फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया, बट इवन स्टिल इट वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बिकॉज आप वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हैं जो थेरी में इस्तेमाल होती है। तो आपको फॉर फ्यूचर में सिर्फ आपको ये जरूर मेंशन करूंगी कि व्हेन यू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स तो उसमें आप थेरिस्ट का नाम मेंशन कर दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई पर्सनली थिंक कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बट इट्स ऑलवेज यूजफुल टू क्रिएट ए थेरेटिकल लिंक। ठीक है, जी मैम, अगर थैंक आपको यू सो मच मैम। मैंने मैम लॉरा मल्वे का नाम इंक्लूड किया हुआ, जो मेल गेज थ्योरी थी उसमें मैंने हाँ इंक्लूड किया था उसका नाम। हाँ, वो आपने मलबे को शुरू में मेंशन कर दिया, सो आई जी थिंक दैट इज आल्सो फाइन। सो इट वाज वेल प्रिपेयर्ड जी।